چیر دے چاند جب وہ اشارہ کریں، تب کہو نجدیوں سے نظارہ کریں وہ زلفوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے تمام سنی بھائیوں، فرمان بھائی، ہیلو جی بھیا بولو، آپ فری ہوئے ہم آپ کریے بات۔ اچھا فری ہو؟ نہیں کتنی دیر کی بات نہیں، میں یہ مسئلہ پوچھ رہا ہوں، جیسے کہ جی اگر آپ کو نہیں ہے تو بتا رہا ہوں کہ کوئی امام اگر اس کے نماز کے اندر وہ سورہ فاتحہ کو غلط پڑھ دے تو نہ امام کی نماز ہوتی ہے اور نہ ہی مقتدی کی، کیونکہ ان نے جو سورہ فاتحہ تھی وہی غلط پڑھ دی، ٹھیک ہے؟ اچھا، سورہ فاتحہ غلط پڑھ دیا آپ نے؟ میں نے نہیں، جیسے کہ کسی مسجد میں کسی امام نے سورہ فاتحہ غلط پڑھ دی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ اب وہ نہ تو امام کی نماز ہوئی کیونکہ سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے، اور نہ ہی ان کے پیچھے مقتدی کی، کیونکہ امام ہی کی نہیں ہوئی تو مقتدی کی کیا ہوگی، ٹھیک ہے؟ جی جی یہ تو رہا فرض کا یعنی سورہ فاتحہ کا سوال۔ اب چلو ٹھیک اسی ترکیب سے جس امام کی سورہ فاتحہ کی وجہ سے نماز نہیں ہو رہی ہے تو مقتدی کی بھی نہیں ہو رہی ہے۔ اب اسی امام کا اگر عقیدہ ہی خراب ہو، ایمان ہی خراب ہو، ایمان ہی نہ ہو، تو پھر امام کی تو نماز ویسے ہی نہیں ہو رہی ہے، پھر اس کے پیچھے مقتدی کی تو پھر بھول جاؤ کہ اس کی ہو جائے گی۔ آپ کو کیا پتا ہے امام کا عقیدہ صحیح ہے نہیں ہے؟ آپ میرے متعلق کیا ہاں ہے؟ یہ میں آپ بالکل کا بالکل۔ متعلق تو آپ کا عقیدہ صحیح ہے؟ ہاں میں آپ کے متعلق یہ جانتا ہوں کیونکہ آپ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، جی تو تبلیغی جماعت والوں کا یہ عقیدہ ہے، طارق جمیل نے بھی اپنی ویڈیو میں کہا ہے اور مولانا رشید گنگوہی صاحب نے بھی اپنے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ تمام صحابہ کی تکفیر یعنی ان کو معاذ اللہ کافر کہنے والا شخص کافر نہیں ہوتا، اور اہل سنت جماعت سے بھی خارج نہیں ہوتا۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ، مولا علی رضی اللہ عنہ، ان کو جو کافر کہے گا معاذ اللہ وہ کافر نہیں ہوگا، یہ تبلیغیوں کا عقیدہ ہے، تو یہ کفر تبلیغیوں پر ہی پلٹ جاتا ہے۔ میرے بھائی دوبارہ کہو، میں آپ کی بات سمجھ نہیں سکا، دوبارہ میں یہ سمجھاتا ہوں بولے۔ جیسے کہ رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے اور طارق جمیل نے بھی اس کو بیان کرا ہے، تو انہوں نے لکھا ہے کہ تمام صحابہ کی تکفیر کرنے والا، تمام میں سارے صحابہ آ گئے، ان کو کافر کہنے والا شخص نہ تو کافر ہوگا اور نہ ہی اہل سنت والجماعت سے خارج ہوگا، یعنی کہ کوئی مولا علی رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی کافر بھی کہے گا تو وہ اہل سنت سے تک خارج نہیں ہوگا، کافر ہونا تو دور کی بات ہے۔ تو نہیں آپ لہٰذا یہ سنے لہٰذا یہ فتویٰ تبلیغیوں پر پلٹ جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتے ہیں۔ ہاں بولے کافر یہ جو صحابہ کو برا کہے گا، یہ بات ہم آپ برا، کی نہیں مانتے۔ ارے بھائی میں نہیں کہہ رہا ہوں، آپ کے گھر کے امام مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے اپنی کتاب فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ آپ تمام صحابہ کو کافر کہنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا، اور میرے کافر تو بھائی دور اہل سنت سے خارج نہیں ہوتا۔ جی بولے۔ میرے بھائی آپ جو بتا رہا ہے مجھے، آپ کتاب کا پیج صفحہ نمبر بتاؤ، میں ابھی آگے پڑھوں گا، کسی عالم کے پاس رکھی ہوگی آگے بھی پڑھتا ہوں۔ آپ مجھے اچھا بتائیے، آپ کی سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرنے کا۔ ہمارے یہاں تو بچہ کا ذہن یہ ہے کہ کوئی صحابہ کو برا کہے گا تو وہ کافر ہے، یہ بچہ بالکل کا ذہن ہے ہمارے یہاں، جماعت تبلیغ کا بھی، سب کا۔ ابھی آپ کا سب کا ذہن میں ذہن کسی ہے، نے بات رکھی ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ اچھا صحابہ کی اچھا سزا برابر کی نہ، آپ کے دل کے اندر نہ قدری آ گئے تو آپ مسلمان بھی نہیں ہیں، نہیں ہے نا، بالکل صحیح بات آپ ہے، مسلمان بھی نہیں ہو، بالکل صحابہ کی حقارت بھی آ گئی تو
बिल्कुल सही बात है आपकी बात मैंने मान ली। सुनो, आपकी बात मैंने मान ली, लेकिन रशीद अहमद गंगोही जो आपके अकाबिर, बहुत बड़े अकाबिर हैं, वो ये कहते हैं कि उनको काफिर कहने वाला अहले सुन्नत तक से काफिर खारिज नहीं होगा, काफिर होना तो बहुत दूर की बात है, वो ये कहते हैं। और तारिक जमील भी, सुने, तारिक जमील भी इस बात को मानते हैं कि हाँ, तमाम सहाबा को काफिर कहने से इंसान काफिर नहीं होगा। ये मैंने अपने ही अकाबिर के फतावा में पढ़ा है। तुमने बात की होगी तारिक जमील की, हमने ऐसा कोई बयान नहीं सुना उनका नाम है जी ठीक है, आप इमाम नहीं है ना, आप एक, मैं बताता हूँ, आपने इसलिए नहीं पढ़ा है क्योंकि आप इमाम नहीं है और आप आलिम नहीं है, इस वजह से। जो आलिम है वो फतावा रशीदिया जरूर पढ़ते हैं और उस फतवे को भी वो पढ़ते हैं, इसलिए उस इमाम का अकीदा खराब हो जाता है, क्योंकि वो रशीद अहमद गंगोही साहब को गलत कहते नहीं है। कोई पढ़े ना पढ़े, मैं जरूर पढ़ूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, अगर मैं ये फतवा आपको दिखा दूं फरमान भाई, तो आप ये कहेंगे कि हाँ, तबलीगी जमात में जो रशीद अहमद गंगोही साहब है उनका अकीदा गलत है, कहेंगे ना? लिखी हुई मैं देख तो लो है क्या, जो आप कह रहा है लिखी हुई उसको तो देख लो, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा। नहीं, कुछ भी फर्क नहीं है, वाजे लिखा हुआ है, बिल्कुल क्लियर चिट में लिखा है। आप मुझे सफा नंबर बताइए, मैं पढ़ लूँ, उसका व्हाट्सएप नंबर आपको भेज दो, पूरा पर्चा पढ़ के। अगर ये वाकई में गलत तो अगर समझ में आएगी, मैं उलेमा से तहकीक करूँ, फिर आपसे बात करूँगा। अच्छा, नहीं, बिल्कुल मैं आपको, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? एक काम करें, आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है? समझे, मेरे पास ये छोटा नंबर मोबाइल है, बड़ा नंबर घर पे आएगा, उससे मैं बात कर लूँगा। ये देखें, ये फतावा रशीदिया है, और इस सुने, हाँ, ये फतावा रशीदिया है, ठीक है। अब मैं आपको इबारत पढ़ के सुनाता हूँ, सुनो, मैं इबारत पढ़ रहा हूँ अब, ठीक है, जो उन्होंने लिखे हैं वो अल्फाज पढ़ रहा हूँ किताब के। लिखा है, जो शख्स सहाबा किराम में से किसी की तकफीर करे, तकफीर कहते हैं काफिर कहे, तकफीर करे, वो मलऊन है। क्या है? मलऊन है। ऐसे शख्स को इमाम मस्जिद बनाना हराम है, और वो अपने उस गुनाह कबीरा के सबब सुन्नत जमाअत से खारिज नहीं होगा। क्या कहा उन्होंने? जो तमाम सहाबा की तकफीर करे उसको इमाम मस्जिद बनाना हराम है, लेकिन वो सुन्नत जमात से खारिज नहीं होगा। ये लिखते हैं रशीद अहमद गंगोही साहब। तो वो ऐसे शख्स को ईमान वाला भी लिख रहे हैं और कह रहे हैं कि वो अहले सुन्नत जमात से खारिज भी नहीं होगा, और ये मैंने इबारत पढ़ी है। इसके अलावा भी सुने होगी ना, चलिए ठीक है, आप उसकी तहकीक कर लेना। मोबाइल नहीं भाई, मोबाइल के अंदर जो मोबाइल में तो कुरान भी और किताबें भी और सब कुछ। सुने फरमान भाई, ये जो असली किताब होती है, मोबाइल से फोटो जो हम खींचते हैं, जैसे कोई इंसान हमारे सामने खड़ा है, उसका हमने फोटो खींच लिया, तब मोबाइल में फोटो खींचने के बाद बंदर थोड़ी बन जाएगा। ठीक इसी तरकीब से फरमान भाई सुन तो लें, सुन तो लें फरमान भाई। अब ठीक से इसी तरकीब से फतावा रशीदिया का अगर हम मोबाइल से फोटो खींचेंगे तो वो चेंज थोड़ी ही हो जाएगी, वही लिखा होगा उसके अंदर। चलिए आप इसकी तहकीक कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी ही बात मान लो, आप इसकी तहकीक कर लेना, और जब आप तहकीक कर लें फिर उसके बाद में खुद ये फैसला कर लेना कि हाँ भाई, किसी तबलीगी और देवबंदी इमाम के पीछे तो नमाज पढ़ना ठीक नहीं है, जिसका ऐसा अकीदा हो। आप खुद इस पर मतलब फैसला कर लेना, मेरी ना माने, आप मुझे अपना व्हाट्सएप बताएं, मैं उस पर भेज देता हूँ। मैं तो यहाँ आलिम कैसा माशाल्लाह, उनके पास किताबें रखी, वो मैं खुद पढ़वा जाता। एक काम करें, आप आलिम साहब से मेरी बात कराएं हैंड फ्री करके। आलिम साहब बात करा? हाँ जी, आलिम साहब से आप मेरी बात कराएं, हैंड फ्री कर ले। और देखिए, अगर ये किताब में कोई ऐसी बात उन्होंने लिखी है तो वो जाने उससे हमारे अकीदे खराब नहीं होगी। ठीक है, हमारे अकीदे खराब नहीं होगी, अल्लाह शुक्र है। हमारे यहाँ बच्चा है, जज्बा ये है कि साहबा के लिए जान देते हैं कि कोई रत्ती भर भी उनकी जान देंगे। आप पता है क्यों है आपके अंदर ये जज्बा? इसलिए है, हमारे जो इमाम है जहाँ आजम के लिए उन्होंने जौन से भी वजन में था, उन्होंने नमाज मना करी पढ़ने के लिए। गलत बात है। ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, पढ़ ले रहे हैं आप लोग।
आपके ऐसे अकीदे बताऊं क्यों हैं? ऐसे अकीदे इसलिए हैं क्योंकि देवबंदी जब नहीं, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, सुनो मैं बता रहा हूँ, आपके अकीदे ऐसे इसलिए हैं क्योंकि सुन्नी जो है अहले सुन्नत वल जमात, सुन्नी हनफी जो बरेलवी हैं उनके अकीदे ऐसे हैं, और आपने सुन तो ले यार भाई, मेरी बात तो सुन ले। हाँ तो वही कह रहा हूँ। अच्छा जिस इमाम का ऐसा अकीदा हो, सुने जिस इमाम, तो आप जिनके पीछे नमाज पढ़ रहे हैं वो तबलीगी जो है उनके अकीदे गलत है फिर आप, अरे ये फालतू बातें करने से फरमान भाई ये बातें करने से कोई फायदा नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बात करने से फायदा होता है। अब जैसे जो आप तबलीगी जमात में जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसका अकीदा गलत है, मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपका सही है तो उसका गलत है, उसके पीछे नमाज मत पढ़िए, पता चले कल कयामत में आपकी नमाज फजूल जाए, क्योंकि वो फतावा रशीद, अरे वो देवबंदी क्यों है? अच्छा ये बताओ वो देवबंदी क्यों है? इसीलिए तो है क्योंकि वो रशीद अहमद गंगोही, अशरफ अली थानवी, कासिम नानतवी, ये सब इनको फॉलो करते हैं, तभी तो देवबंदी है वो। नहीं, हम तो सारे उलमा किराम को मानते हैं। हाँ तो अब आपको क्या करना है, आपको तभी कोई अगर ये गलत बात कहेगा कोई भी वो गलत नहीं माने, कुरान है। अच्छा ऐसे शख्स के पीछे आप नमाज पढ़ेंगे जिसका ये अकीदा हो? नमाज तो देखिए, एक आदमी अगर भी किसी के साथ शरीक करे उसके पीछे नमाज नहीं होने की, और वो किताब है वो पढ़ ली अगर जी आपने, तो आपका अकीदा तो खराब नहीं होगा। जबान से अगर वो भूल गया होगा तो बात अलग है। भाई अकीदे लिखे जाते हैं, उसको पढ़ के बनाए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा अकीदा कि सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को काफिर कहने वाला काफिर नहीं होगा। पीछे नमाज नहीं होगी। हाँ तो इससे बड़ी बिदत हो, ठीक है, अब इससे बड़ी बिदती हो जो फरमान भाई मैं ये पूछ रहा हूँ, उसके पीछे नमाज, फरमान भाई छोटा मोटा बिदती है तो उसके पीछे भी नमाज हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ना। अब ये बताए जिसने सहाबा किराम को काफिर कहने वाले को ईमान वाला कह दिया वो कितना बड़ा बिदती है? क्या ऐसे के पीछे नमाज हो जाएगी? मैं हाँ नहीं करूँगा जब तक मैं खुद पढ़ ना। ठीक है आप पढ़ लेंगे तब तो आप मोहर लगाएंगे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका, सुनो तो, जिसका अकीदा ये हो उसके पीछे क्या नमाज हो जाएगी? मैं ये पूछ रहा हूँ। बस ना हाँ कहने का आपसे ना कहने जब तक पढ़ ना लूं। अरे मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुने मैं ये नहीं कह रहा कि आप उन पर रशीद अहमद गंगोही जो है उन पर फतवा लगा दें, क्योंकि आपने इबारत नहीं पढ़ी है, पढ़ लेना फिर लगा देना। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जिसका ये अकीदा हो कि जिसने सहाबा इकराम को माज़अल्लाह काफिर कहा वो इंसान ईमान वाला है, काफिर नहीं है, क्या उसके पीछे नमाज पढ़ लेंगे आप? मैं खाली ये पूछ रहा हूँ। तो जो मुसलमान ही नहीं है तो नमाज तो बड़ा करे। ठीक, बिल्कुल ठीक फरमान भाई। अब आप क्या काम करें, अब आप तहकीक करें, अपने इमाम के पास जाएं और कहें कि ये फतावा रशीदिया में ऐसी ऐसी बात लिखी है। किताबें है, मैं खुद पढ़ लूंगा। आप खुद पढ़े उसको, टेंशन ना ले, आपको व्हाट्सएप पे भी मैं भेज देता हूँ, सफा नंबर चेक कर लो, फिर उसी हिसाब से उसको वो पढ़े। उसको पढ़ने के बाद आप खुद फैसला करें कि हाँ रशीद अहमद गंगोही साहब ने तमाम सहाबा को फिर कहने वाले को माज़अल्लाह ईमान वाला लिखा है, अहले सुन्नत वल जमात से खारिज भी नहीं होगा ये लिखा है। या तो आपके समझ में उनके जो बात उन्होंने लिखी होगी आप समझ नहीं पा रहा है उसको। मैंने अल्फाज पढ़े हैं जनाब, कुछ बात तो होगी। नहीं ये चीज उन्होंने लिखी है तो उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ होगा जरूर। आगे और पीछे भी आप पढ़ लेना, आप पूरी तहकीक कर लेना, फिर उसके बाद में आप फैसला कर लेना। उन्होंने यही लिखा है कि वो काफिर नहीं होगा। हाँ आजम भाई, हेलो, ये तो कॉल काट के चले गए आजम भाई। लटका दिया आपने, इनको लटका दिया सही करके, बहुत सही। अरे भाई ये तो कॉल काट के चले गए। अब ये देखें, यानी कि कोई एक मान लो मिर्जा कादियानी है, उसको वो अपना इमाम मानता है, उसके पीछे नमाजें पढ़ता है, उसके बाद में दिखाया जाए कि भाई मिर्जा कादियानी ने अपने किताब में ये लिखा था और तुम उनके मानने वालों के पीछे नमाज पढ़ रहे हो, तो कहा भाई मुझे तो पता ही नहीं था लिखा था। अबे तो तुझे पता क्यों नहीं था? तुझे पता करना चाहिए था कि जिसको तू इमाम मानता है, अपना अकाबिर मानता है, उसके अकीदे क्या थे, ये तुझे लाजिम था कि तू पता करे। तू बगैर पता करे ऐसे लोगों के पीछे नमाज भी पढ़ता है और तेरी नमाज भी खराब हो रही है। कह रहा मैं तहकीक करूंगा। आज क्या नई तहकीक करेंगे, बरसों से इस पर मुबाहिसे और बहस मुबाहिसे चल रहे हैं
اور خود طارق جمیل نے بھی یہ کہا تھا کہ ہاں یہ بات ہمارے فتاوا میں لکھی ہے کہ تمام صحابہ کو کافر کہنے سے انسان کافر نہیں ہوتا. معاذ اللہ. ہاں بالکل ہے، اس کی تقریر موجود ہے. تقریر موجود ہے اور یہ فتاوا رشیدیہ میں لکھی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ ایسے دیوبندیوں کو تبلیغیوں کو چھوڑیں اور جو اہل سنت 1400 سال سے تھے جنہوں نے یہ باتیں گستاخانہ نہیں لکھی ان کے پیچھے آ جائیں مسلک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر.